دو دن پہلے یہ خبر ملی کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ایک مشہور عالم دین ہیں، پیام انسانیت کے بہترین سپاہی، نہ سیاست سے تعلق نہ دنیا داری سے تعلق، صرف اپنے مذہب کی پریچنگ کرتے ہیں، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا۔ اس سے پہلے کچھ دن پہلے برادر عمر گوتم اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا۔ یہ لو جہاد جو ہے، یہ ایجنڈا ہے یو پی الیکشن کا۔ میں نے کئی مہینے پہلے یہ بات کہی تھی کہ نہ جانے کتنے مظلوم لوگوں کو جیلوں کے سراخوں کے پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ الیکشن جیتنا ہے۔ اس سرکار نے ہندوستان کی روح قبض کر لی ہے، ہر سمت بربادی اور تباہی کی کگار پہ کھڑے ہو گئے۔ اب الیکشن لڑنا ہے تو صرف اب اسی مسئلے پر لو جہاد ہے، مسلم دشمنی ہے۔ اسی لیے میں برابر آپ سے کہتا رہا ہوں کہ ہوشیار ہو جائیے، ابھی نہ جانے کتنے مظلوموں کو ابھی جیل جانا ہے۔ ہم لوگ اردو اخبارات میں خبریں چھاپ کر، کنڈولنس کر کے، دعاؤں کے لیے اعلان کر کے زندہ رہیں گے اور اسی پہ مطمئن رہیں گے۔ یہ سب عذاب صرف اس لیے ہے کہ ان کو الیکشن جیتنا ہے۔ میں نے کئی بار آپ لوگوں سے کہا، لیکن آپ لوگوں کے سمجھ میں یوں نہیں آتا کہ آپ کے یہاں جنون پیدا ہو گیا ہے الیکشن کا۔ جس ہتھیار سے وہ آپ کو مارتے ہیں اور الیکشن جیتتے ہیں، اس ہتھیار کو ختم کر دیجئے۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ بات کہ ایک الیکشن، خدا کے واسطے ایک الیکشن مدعے پہ لڑ جانے دیجئے۔ ہندوستان کا الیکشن روزی روٹی پہ ہونے دیجئے۔ لیکن آپ لوگ تو سنتے نہیں ہیں۔ اویسی جو کہتے ہیں، میں بھی وہی کہتا ہوں، اور وہی ہر مسلمان کہتا ہے۔ اور اویسی جو سوچتے ہیں، میں بھی وہی سوچتا ہوں۔ وہ درد مجھ میں بھی وہی ہے، اور ہر مسلمان میں وہ درد ہے۔ لیکن میرے اویسی سے اختلاف صرف اس بنیاد پر ہے کہ جس گندی سیاست سے ایک حکومت بنی ہے، اس گندی سیاست میں تم شریک مت ہو۔ ان کو موقع مت دو کہ یہ اور قوتور ہو جائیں۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ گاندھی نے اتنی بڑی فتح پائی تھی نان کوآپریشن سے۔ ایک بار تو نان کوآپریشن کر کے دیکھیے، ایک بار تو دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے، سوچیے کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، اور جب ہم حصہ نہیں لیں گے تو سیکولر پارٹیاں جو آپ کے لیے بولنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بھی ہندوئی ووٹ چاہیے، آپ کا ووٹ نہیں چاہیے۔ آپ مجبوری ہے ان کو ووٹ دینے کی، یہ بات وہ جانتے ہیں۔ جب آپ ان کو یہ بتا دیں گے کہ ہم آپ کے ووٹر یا کسی کو ووٹ ڈالنے نہیں جا رہے ہیں، اس وقت یہ سیکولر پارٹی جو آپ کے ووٹوں کی ٹھیکیدار ہے، اس کو فکر ہوگی، یہ شاید آپ کے لیے بولنے کھڑے ہو جائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، سالوں ہو گئے، سماج وادی پارٹی کا بانی جیل میں ہے، بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ آج کلیم صدیقی ایسے علماؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو جو ووٹ چاہیے، ہر پارٹی کو تو ووٹ میجارٹی کمیونٹی کا چاہیے۔ خدا را سوچئے اس بات پر۔ جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں، اگر ان کا تعلق ہے تو جماعت علماء کی جو جماعت ہے، اس سے پوچھئے، کہیے اسے کہ فکر کریں، اور وہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ ایک تجربہ تو کر کے دیکھ لو۔ جماعت اسلامی کے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دانشوروں کی ایک ٹیم ہیں، وہ کیوں نہیں سوچتی جماعت اسلامی کے لوگ؟ مسلم پرسنل لا بورڈ کہتا ہے کہ ہم شریعت کی حفاظت کریں گے، وہ اسی لیے بنا تھا۔ ارے جب مسلمان ہی نہیں رہے گا تو شریعت کہاں سے بچے گی؟ ایک خوف زدہ قوم سے شریعت کی کو کیسے توقع کرتے ہیں آپ؟ ایک ڈری ہوئی، سہمی ہوئی قوم۔ آپ کہیے لوگوں سے
کہ यूपी का अगला इलेक्शन हम लोग इसमें शरीक नहीं हैं। जब बांसुरी नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी? और वो लोग जो हमको दिखाकर अपने को मजबूत कर रहे हैं, उनको एहसास हो जाएगा, बिरादरियां अपना हक मांगेंगी, लड़ाई होने दीजिए, मुद्दे पे लड़ाई होगी। और जब मुद्दे पे लड़ाई होगी तो इस मुल्क में सुकून हो जाएगा। एक तजुर्बा कीजिए मेरे अजीजों, मैं उन सारी बिरादरियों से भी कहना चाहता हूँ, चाहे वह हमारी कुरैशी बिरादरी हो, अंसारी बिरादरी हो, जो भी बिरादरियां हैं, उसमें डिस्कशन करिए, ये पैगाम दीजिए सब तरफ। वैसी साहब से भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरे अजीज, सब तजुर्बे आपने कर लिए, आपके पीछे एक बड़ी कुव्वत है। एक मुसलमान जो आज उसके दिल में जो तकलीफ है, जो आपके दिल में है, मेरे दिल में भी है। मेरे फार्मूले पे अमल करके देख लीजिए। खुदा के वास्ते यूपी के इलेक्शन से किनारा कशी कर लीजिए और हैदराबाद चले जाइए और लोगों को समझाइए कि एक इलेक्शन हम नहीं लड़ रहे हैं। आप लड़ेंगे, 2-4 सीटें आप पाएंगे, या 10 सीटें या 25 सीटें, लेकिन इनका मकसद पूरा हो जाएगा। ये 300 का आंकड़ा फिर पूरा कर लेंगे और जो सोकाल सेकुलर पार्टी हमारे वोटों के ताजिर हैं, उनकी आंखें भी खुल जाएंगी। तो मैं वैसी साहब से भी कहना चाहता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपकी जुर्रत की इज्जत करता हूं, लेकिन कभी इस पे भी सोच के देख लीजिए। अगर आप अपनी कौम को ये समझाने के लिए तैयार हो जाएं कि एक इलेक्शन हम बगैर हिस्सा लिए होने दीजिए, एक इलेक्शन मुद्दे पर, रोजी रोटी पर, इस मुल्क के कानून पर, इलेक्शन कमीशन को भी आराम मिल जाएगा। न ईवीएम की तोड़फोड़ की जरूरत पड़ेगी, न उनको जादू करने की जरूरत पड़ेगी, फिर इलेक्शन होगा। ये वो चीजें हैं जिस पे आपको सोचना चाहिए। मैं इसलिए आपको ये पैगाम दे रहा हूं कि आप इसको देखिए और अगर आपकी समझ में आ जाए तो औरों तक पहुंचाइए। खुदा के वास्ते आप बताइए लोगों को, और क्या सलूशन है, कोई सलूशन तो बताएं। कम से कम जो ये जमातें हैं, इन जमातों को और इन बिरादरियों की जमातों को एक बड़ा बैठक करनी चाहिए और मेरी ये नाकिस राय पर तजुर्बा करना चाहिए, इस पर बहस करनी चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि ओवैसी को लड़ाकर या किसी एक मखसूस पार्टी को वोट देकर आपका मसला हल हो जाएगा, तो ये हम बहुत सालों से देख चुके हैं, ये नहीं होने वाला है। गांधी ने नॉन कोऑपरेशन किया था, नॉन कोऑपरेशन करके ही उसने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई थी। नॉन कोऑपरेशन करिए, कहिए यही बात। हम न लड़ रहे हैं, न मर रहे हैं, न हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम अपनी दुनिया में वापस जा रहे हैं। फिर क्यों लब जिहाद? होना तो ये चाहिए था, आरएसएस को ये सोचना चाहिए था कि अगर उनका नौजवान तबका उनके मजहब से भाग रहा है तो इसमें गलती न क्रिश्चियनिटी की है, न इस्लाम की है, न बुद्धिज्म की है। अगर आप में कोई कमजोरी है तो इस पर सर जोड़ के बैठिए। इलेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल मत कीजिए। आप सोचिए अभी कितने घरों में मातम होगा, और अगर आपका ये जुनून रहा तो फिर कोई घर बचेगा नहीं। इलेक्शन इसी पर होगा, लब जिहाद पे होगा। आपको मालूम ही है कि अभी कितने बेचारे रिक्शे वाले, ऑटो रिक्शे वाले अभी गिरफ्तार किए गए। हिंदुस्तान को तबाह करने जा रहे थे, जिनका दस्तखत करना जिनको नहीं आती है, महीनों सालों जेलों में रहेंगे। इस मुल्क को अगर बचाना है और इस मुल्क में अगर जिंदा रहना है इज्जत के साथ, तो ये तजुर्बा करके आप जरूर देखिए और कह दीजिए कि आप फैसला करें। ये आपका मुल्क है, आप संभालें, आपके हवाले आपका मुल्क। एक इलेक्शन अगर यूपी में यह तजुर्बा करके अगर आप देख लें और अगर ये गलत साबित हो तो जो सजा आप देना चाहें देने के लिए हम तैयार हैं।
भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन खुदा के वास्ते सोचिए, ऐसे ऐसे बड़े आलमाओं के ऊपर भी हाथ पड़ गए, और जो हजरात जमात उलमा और जमात इस्लामी और मुख्तलिफ जमातों के उलमा हैं, उनका भी वक्त आ जाएगा इलेक्शन से पहले। ऐसा मत करिए। मैं जो आपके जहन में ये बात डाल रहा हूं, अलीगढ़ के कुछ लोगों ने फैसला किया और वो इस बात लेके चले हैं। अभी उन्होंने दिल्ली में एक मीटिंग करी, अब कल 3 तारीख को अलीगढ़ में करने जा रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों में करेंगे। ये बात समझाएंगे पढ़े लिखे लोगों को। उलमाए कराम की भी जिम्मेदारी बनती है। उर्दू अखबार में सिर्फ छापने से काम नहीं चलने वाला है। आपके फॉलोअर्स हैं, आपके बहुत बहुत फॉलोअर्स हैं, उनको एक राह तो दिखा दीजिए, समझाइए उनको। एक इलेक्शन से दुनिया नहीं बदलेगी। जो लोग कैंडिडेट हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने आकाओं से कह दें कि इस इलेक्शन में मैं कैंडिडेट नहीं हूं, आप अपना कैंडिडेट लड़ा लीजिए। अगर आपके यादवों की पार्टी है तो 100% यादव लड़ा लीजिए। अगर आपके कुर्मियों की पार्टी है तो 100% कुर्मी लड़ा लीजिए। और कांग्रेस से भी कह दीजिए कि आपको जो आपकी समझ में आकर लीजिए। हम लोग आपके इलेक्शन में साथी नहीं हैं। हमने जो हिंदुस्तान देखा था, जो तसव्वुर किया था, उसका इंतजार कर रहे हैं। जब मुद्दे पे लड़ाई होगी, इश्यूज पे लड़ाई होगी, उस वक्त हम बराबर के आपके शरीक होंगे। जब हमारे ऊपर तलवार रखकर मजहब के नाम पर हिंदू मुसलमानों पे लड़ाई होगी, तो उस गंदगी में हम नहीं जाएंगे। और इसी बुनियाद पर मैंने ओवैसी साहब के बारे में जो आपसे कहा, ओवैसी साहब से भी कहिए। यकीनी तौर पर वो एक बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जो लोग ओवैसी साहब को फॉलो करते हैं और जो लोग ओवैसी साहब की सलाहियत को मानते हैं, ओवैसी साहब के भी हाथ पैर पकड़ लीजिए। उनसे गुजारिश कीजिए कि ये यूपी का इलेक्शन आपके और आपके मुल्क के और आपकी कौम के फैसला करने जा रहा है। जो कुछ मैंने कहा है, खुदारा इस पर सोचिएगा, और अगर बात समझ में आ जाए तो ये बात आगे बढ़ा दीजिएगा। बहुत बहुत